Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Now, children, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Lesson 3 is your test portion. Your test portion is lesson 3. Okay. और सारे लोग अपने माइक को म्यूट करके रखें. माइक शुड भी आपका माइक म्यूट होना चाहिए. Okay, ma'am. बिना वजह आपके आप बिना वजह आपके घर की आवाज जो है वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आती रहती है आपके घर से आवाज. ध्यान कम देते हैं आप लोग, बात सुनते नहीं. नाउ we have done A, B, C and D of lesson 19. Is it? किए हैं कि नहीं? Yes, हम लोगों ने ma'am. किया है. Yes, ma'am. और Yes, हाँ, E1 का आंसर हमको बताइए. अमित कुमार पढ़कर बताइए. तो E1 का आंसर भी हमने बता दिया था आपको. अमित कुमार क्वेश्चन भी पढ़िए, आंसर भी पढ़िए. बताइए हमें E1 का आंसर. Yes, ma'am. How the Union Council of Ministers appointed? Explain it in explanation. First, he acted as a link between the cabinet Silent. and the president. किसके यहाँ से आवाज आ रही है? चलिए अमित कुमार पढ़िए. He acted as a link between cabinet and the president. Second, he is supervisor and coordinating the working of various departments. कहाँ तुम कर रहे हो? यूनियन काउंसिल. Minister. ये क्या पढ़ रहे हो तुम? ये क्या पढ़ रहे हो तुम? ये क्या पढ़ रहे हो तुम? What you are studying? तुम पढ़ क्या रहे हो? अमित कुमार, Minister President. तुम क्या पढ़ रहे हो? कौन सा क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहे हो? बताओगे? अमित कुमार. List any 5 power of function and prime minister. नो, क्वेश्चन नंबर 1 की बात मैं कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रही हूँ. E1 को पढ़ो कर. How is the Union Council of Ministers appointed? Explain its main function. हाँ. The Council of Ministers is appointed by the President on the recommendation of the Prime Minister. The Council of Ministers is the minister of which hold the ministry in the particular government and lead head by the Prime Minister and perform executive functions. And under Article 74 of the Constitution of India dealing with the Council of Ministers says that Council of Ministers is collectively responsible to Lok Sabha. क्या लिख रहे हो? ये तो मैंने नहीं बताया था. कौन बताएगा? Who will give me the answer? Ma'am, can I? Ma'am. हाँ बोलिए अदिति प्रिया. क्या है? बोलिए. बोलिए अदिति प्रिया. क्वेश्चन भी पढ़िए, आंसर भी बताइए. हाँ How is the Union Council of Ministers appointed? Explain its main functions. हाँ. The composition of the Council of Ministers start with the appointment of the Prime Minister by the President of India. Other ministers appointed afterwards by the President on the advice of the Prime Minister. Functions of the Council of Ministers. Point 1. The Council of Ministers is responsible for the formation of internal and external policy of the country. Point 2. Taking decision at the national and international level to run to the administration thoughts various ministries. Fourth point is third point is also perform certain legislature functions like preparing and approving the annual budgets and making laws. This was the fourth point. यही लिखना था. अमित कुमार आपने सुन लिया? अमित कुमार. हाँ, this was the answer. Now list any 5 powers and functions of the Prime Minister of India. तो लिखेंगे any 5 powers and functions of the Prime Minister of India are. ये तो आपको डायरेक्ट दिया हुआ है.
पेज नंबर है 225। ये हम आप लोगों से सुन भी चुके हैं इस आंसर को। इसमें कहीं एनी 5 आप लोग लिख लेंगे, एनी 5 पॉइंट आप लिख लेंगे। यशवी राज, इस राय, इसमें का 5 पॉइंट आप पढ़ देंगे क्वेश्चन के साथ। Okay, ma'am. पढ़िए। Question number 2. Please tell me 5 powers and functions of the Prime Minister of India. 5 powers and functions of the Prime Minister of India are to form Council of Ministers, to preside over the meetings of Cabinet as well as Council of Ministers, to advise the President to summon or procure the session or to dissolve the Lok Sabha before its term expires, to advise the President about important appointments like that of Chairman of UPSC, Auditor General of India, Ambassadors, etc. Option 5, to act as a link between the President and the Cabinet. हो गया, सभी का आंसर क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिखिए, द लेजिस्लेटिव एंड द फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर। द लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर। फर्स्ट लिखिए, इसी तरह लेजिस्लेटिव पावर, फर्स्ट लिखिए लेजिस्लेटिव पावर, फर्स्ट लिखिए लेजिस्लेटिव पावर। पेज नंबर 222 में चले जाइए। पॉइंट 1, द प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर का सेकेंड लाइन देखिए, द प्रेसिडेंट कैन समन, प्रोरोग एंड एड्रेस द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पॉइंट 1 लेजिस्लेटिव पावर का पॉइंट 1। पॉइंट 2, every year the first session of the parliament begins with her address. Point 2, he can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its normal term if he is advised to do so by the Prime Minister. Point 4, no bill passed by both the houses of the parliament becomes a law without his or her consent. ये सारा उसका पावर है, लेजिस्लेटिव पावर में, ठीक है। Prior approval of the point, next point, prior approval of the president is essential before a money bill is introduced in Lok Sabha. फाइव पॉइंट हो गया ना? यस और नो? Yes, ma'am. 5 पॉइंट, हाँ 5 पॉइंट कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपका आता है तो 5 मार्क्स आएगा। लेकिन नीचे का भी देखिए, ये सारा भी आप लोग समझ लीजिए। 12 members of the Rajya Sabha are nominated by the president from amongst the distinguished persons in the field of arts, science, literature, social service, sports, etc. ये भी एक पॉइंट है, लेकिन हमने 5 पॉइंट ही आप लोगों को इसलिए दे दिया क्योंकि 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आपका आता है तो आप 5 पॉइंट ही लिखिएगा, उससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद का भी पॉइंट है, ये लेजिस्लेटिव पावर है। He she can also nominate 2 Anglo-Indians to the Lok Sabha if the community is not adequate represented. ये भी एक आंसर है, मतलब 7 पॉइंट्स है। आपको 5 पॉइंट्स इसमें का जरूर आपको याद कर लेना है। इज इट क्लियर? अनुप्रिया कुमारी, ये 5 पॉइंट्स एक बार पढ़ दीजिए, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन के साथ पढ़िएगा। Yes, ma'am. Question 3. Describe the legislative and financial powers of the President of India. The legislative. अभी मैंने लेजिस्लेटिव ही बताया, फाइनेंशियल नहीं बताया, लेजिस्लेटिव को ही पढ़। ओके, चलिए पढ़िए। Legislative powers. First point. The President can summon or prorogue and address the 2 houses of the Parliament. Second point. Every year, the first session of the Parliament begins with his or her address. Third point, she or he can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its normal term if she or he is advised to do so by the Prime Minister. Fourth point, no bill passed by both the houses of the Parliament becomes a law without his or her consent. Fifth point, prior approval of the President is essential before a money bill is introduced in Lok Sabha. ओके, वेरी गुड। उसके बाद है फिनेंशियल पावर।
फिनेंशियल पावर को भी लिखेंगे। देखिए फिनेंशियल पावर में दिया हुआ है, इसका पॉइंट छोटा छोटा है। द एनुअल बजट ऑफ द कंट्री इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ये सीधा पॉइंट 1 हो जाएगा फिनेंशियल पावर का। पॉइंट 2 all money bills also require his or her approval before they are introduced in the Lok Sabha. She had the power to appoint members of the Finance Commission. उसके बाद लास्ट पॉइंट ठीक है, वो इन केस सर्टेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज द प्रेसिडेंट कैन सैंक्शन मनी टू द गवर्नमेंट आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड टू मीट द सिचुएशन। ये इमरजेंसी में, ये इन द केस ऑफ इमरजेंसी। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको लिखना जरूरी है। शांभवी सिन्हा, आप फिनेंशियल पावर्स को एक बार पढ़ देंगे? Yes, ma'am. शांभवी सिन्हा, यस। The financial power of President of India as the annual budget of country. नहीं, सीधा लिखेगा, ये तो आपका ऊपर में मैंने शांभवी प्लीज वेट। We have already written that legislative and the financial power of the President of India are, ठीक है ना, क्वेश्चन के पहले। Yes. उसका लेजिस्लेटिव पावर हम लोगों ने कर दिया, सिर्फ आपको फिनेंशियल पावर वर्क करके लिखना है। चलिए बोलिए, सिर्फ फिनेंशियल पावर, द फिनेंशियल पावर नहीं बोलिए, तो एक वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है। हाँ चलिए बोलिए। First point, the annual budget of the country is present in the parliament in the name of president. Second, all bills also require her or his approval before they are introduced in Lok Sabha. Third, she or he has the power to appoint members of the finance commission. Fourth, in case certain extraordinary situation arise, the president can sanction money to the government out Sanction is sanction. To the government of contingency fund to meet the situation. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द 3 सिचुएशन अंडर विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी। सीधा लिखिए द 3 सिचुएशन अंडर विच, क्वेश्चन को ही देखिए, द 3 सिचुएशन अंडर विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी आर, ARER। फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी, पॉइंट 2 है ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट। पॉइंट 3 है फिनेंशियल इमरजेंसी। उसके बाद लास्ट में लिख दीजिएगा, हाँ हो गया बस। 3 आपको 3 पॉइंट देना था। 3 अगर एक्सप्लेन करने के लिए देगा तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जैसे ई में बड़ा आंसर को हम लोग इलोबोरेट कर देते हैं तो एक्सप्लेन भी कर देना चाहिए। तो जैसे उसको आप बहुत ज्यादा नहीं करिएगा। नेशनल इमरजेंसी, तो द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर द होल कंट्री इन केस ऑफ एनी, मतलब ये क्यों किया जाता है, तो इन इफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेन्ड बाय वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन। ये याद रख लीजिएगा, अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। लेकिन 3 पावर्स ऑफ पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई उसमें बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। और लंबा आंसर आएगा तो आप थोड़ा सा इसको कर दीजिएगा, मतलब इलोबोरेट कर दीजिएगा। तो इलोबोरेट वही करिएगा जब पॉइंट दीजिएगा, आप अपने बुक में कॉपी में लिख भी सकते हैं इसको। जैसे नेशनल इमरजेंसी, if the security of the country is threatened by war or external aggression or internal armed rebellion, the president can declare a state of emergency for the whole country. Point 2, breakdown of constitutional machinery in a state. If the government of state is not being run in accordance to the constitution, the president can declare emergency in that state. It is also called imposition of president rule in a state. Point 3, financial emergency. When the financial instability of the country threatened, the president can declare a state of financial emergency. मतलब पैसा का कमी है, सब लोग सोच समझ कर खर्च करिए।
फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब ये हुआ। उसके बाद है कि पहले आंसर सिद्धांत कुमार, इस आंसर को थोड़ा पढ़ देंगे क्वेश्चन के साथ। Yes, ma'am. पढ़िए। Question number 4. Explain the situations under which the President of India can proclaim emergency. First, चलिए। national emergency. If the security of the country is threatened by war or external aggression or internal armed rebellion, the president can declare a state of emergency for the whole country. Second, breakdown of constitutional machinery in a state. If the government of a state is not being run in accordance with the constitution, the president can declare emergency in that state. It is also called imposition of president's rule in a state. Third, financial emergency. When the financial stability of the country is threatened, the president can declare state of financial emergency. हो गया। एक्सप्लेन द, नाउ क्वेश्चन नंबर Yes, ma'am. 5 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट है कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट का कोई हमको बताएगा व्हाट इज द, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सप्लेन करना है उसको, सिंपल। Yes, ma'am. May I? बोलिए बोलिए बोलिए। If no party wins a clear majority. देखिए पेज नंबर 224 when a two parties govern. नहीं, In the case आप लोग of पेज no single party page gets number, a clear हाँ। majority, the leader सुन of लीजिए, two or more हाँ। parties combined together or an alliance is upon to become the prime minister and form the government. The government headed by such a prime minister is called coalition government. ये आंसर किसने दिया? Who has given this Shreya, answer? Shreya Kumari. हाँ, श्रेया कुमारी। पेज नंबर है 224 है ये आप लोगों का, जो श्रेया कुमारी ने दिया। तो सिंपली इसको, इसी आंसर को आप यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का थर्ड पैराग्राफ का सेकेंड लाइन देखिए। इन केस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का थर्ड पैराग्राफ का सेकेंड लाइन देखिए। इन केस नो सिंगल पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी, the leader of two or more parties combined together or an alliance is called upon to become the prime minister and form the government. ठीक है, the government headed by such a prime minister is called the coalition government. हो गया, coalition government का हो गया आपका definition. Yes, ma'am. किसी को कोई दिक्कत है? No, ma'am. No, ma'am. Anyone? No, No, ma'am. Okay. Now next है आंसर है impeachment. B. The Impeachment. process to remove the president is called Impeachment. impeachment. If a president violates the constitution, he can remove. देखिए 220 का देखिए, ये जो आपका दिया है, द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। आप इतना भी लिख सकते हैं तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो अब क्या है, इफ ए प्रेसिडेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ही सी कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट which is passed by both the house of parliament by not less than 2/3 majority of the total membership. Impeachment को आपको बताया है, लेकिन इसका आंसर आपको इतना ही लिखना है, the process to remove the president is called impeachment. Clear है? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, Collective ma'am. responsibility. Collective, C है collective responsibility. हाँ, Ma'am, page number 224. Page number The Council of 224. Ministers work. The Council of Ministers work collectively. All the as a ministers team. become equally All the responsible ministers to became equally responsible to defend defend their their acts and decisions. So all the ministers swim or sing together. This is called collective responsibility. ओके, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से हम आई एम गोइंग टू रिपीट द आंसर, फिर से हम रिपीट कर देते हैं, एक बार देख लीजिए। और जिनका भी कोई प्रॉब्लम होगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पेज नंबर है 224, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फोर्थ पैराग्राफ। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क्स कलेक्टिवली एज ए टीम. All the ministers become equally responsible to defend their acts and decisions. So all the ministers swim or sing together. This is called collective responsibility. Clear हुआ?
उसके बाद है आपका इलेक्टोरल कॉलेज। A group of elected members of Rajya Sabha, Lok Sabha, and बोलिए क्या बोल रहे थे? legislative ग्रुप The Institutive President of Assembly, yes, India ma'am. is indirectly Assembly of the elected by states. electoral कॉलेज An electoral consisting of college is a group हाँ of electors consisting selected of to select a candidate to a particular office. कहाँ क्या बोल दिए तुम? क्या बोल Ma'am, दिए? in the पर्टिकुलर ऑफिस Ma'am, page form of number The President of 290. India is elected indirectly by an electoral college consisting of only the elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and Legislative Assembly of States. यही होगा। पेज नंबर 221 का जो डू यू नो है, आप देखिए इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो क्या है, ये आपको पूछ रहा है। तो वो कंसिस्टिंग ऑफ आ गया, मतलब मिला हुआ कि कौन कौन लोग मिल करके उस कॉलेज को बनाते हैं। कॉलेज का मतलब क्या हुआ? एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन। तो वही कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है ना। आप उसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, an electoral college is consisting of all the elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and Legislative Assembly of all states. आप इतना भी लिख सकते हैं। And the members of the electoral college indirectly elect the Prime President of the India. लिखिए, the members of electoral college indirectly elect, elected नहीं लिखे, elect the President of India. आंसर देखिए कैसे लिखेगा, एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट, CONSIST, कंसिस्ट ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोक सभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स। ठीक है ना? Yes, नहीं तो डायरेक्ट भी इस आंसर को लिख सकते हैं। मेरे अगर लैंग्वेज को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप सीधा लिख सकते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोक सभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट। इलेक्टोरल कॉलेज समझ गए? लेकिन डायरेक्ट अगर मेरी तरह लिखिएगा तो आंसर ज्यादा अच्छा होगा। जैसे एन इलेक्टोरल कॉलेज consist of, CONSIST, consist of, TS, consist of all the elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and Legislative Assembly of all the state. ठीक है ना? The President of India is indirectly elected by the members of the electoral college. The President of India is indirectly elected by the members of electoral college. मतलब इतने लोगों को मिलकर बनता है और इलेक्टोरल कॉलेज का रोल क्या है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनता है। समझ में आया? Yes, ma'am. कोई सब मेरे आंसर को ma'am. पढ़ोगे कि अपने आंसर को पढ़ोगे? आंसर कौन सा ज्यादा, आपका अपना आंसर कि मेरा आंसर? हाँ तो कौन सा, कोई पढ़ के आपका सुनाइए आंसर मेरे ठीक। आंसर को। आपका हाँ बोलिए, इलेक्टोरल कॉलेज को पढ़िए। Who will? कौन पढ़ेंगे? मैम An electoral college consists of all the elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and legislative Assemblies yes, of all the legislative states. assemblies of the state. हाँ, the president of India is indirectly elected by the members of electoral college. समझ में आ गया? The president of India is indirectly elected by the members of electoral college. This is the answer. अब इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताए। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताएगा। मैम क्वेश्चन नंबर ई का हाँ। ऑप्शन डी नहीं हुआ मैम।
नहीं हुआ है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओ अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ हाँ ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हुआ है, आपका कहना सही है। हम लोग कर लेते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन, पेज नंबर 219 देखिए। The Constitution of India provides for a parliamentary form of government. In this form of government, there are two types of executives. In this form of government, ऐसे लिखेगा, so there are नहीं लिखेगा. In this form of government, there are two types of executives. The nominal executive and the real executive. The nominal executive and the real executive. Okay. Yes, ma'am. हाँ, इसके बाद लिखिएगा, हम बता रहे हैं कैसे। The real executive is prime minister and the council of minister, whereas the president is the nominal executive. The real executive is the prime minister and the council of minister, whereas the president is the nominal executive. बस इतना ही लिखिएगा। आंसर को कोई पढ़िए, कौन पढ़ेंगे हम बताएंगे। The Constitution of India provides a parliamentary ऐसे क्यों form of करते हो तुम government. लोग, बिना मतलब का पढ़ना शुरू कर देते हो। कम से कम हमको बोलो तो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। कोई someone was asking some question, कौन पूछ रहा था कोई क्वेश्चन, बताइए। मैम ये हो सकता है कि there is a close relationship between the legislature and executive. नहीं उतना ज्यादा लिखने का जरूरत, आपको जितना मन करेगा आप लिखिएगा, लेकिन नंबर इतना ही में आपको काफी आ जाएगा। आपकी मर्जी कि आप क्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन इतना ही होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा है, उसको शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट में पूरा लेकर के कहानी नहीं लिखते हैं, ये आपका शॉर्ट नोट का फॉर्म है। चलिए, कौन पढ़ रहे थे? हु हैज स्टार्टेड टू, किसने आंसर पढ़ना शुरू कर दिया था? कौन पढ़ना शुरू कर दिया था, बताएगा हमको? विल यू गिव मी? तमन्ना। तमन्ना कुमारी, हाँ पढ़िए, अब क्वेश्चन भी पढ़िए, आंसर भी पढ़िए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ बोलिए। Parliamentary form of government. The Constitution of India provides a parliamentary form of government. In this form of government, there are two types of executives, the nominal executive and the real executive. The real executive is the prime minister and the council of ministers, whereas the president is the nominal executive. बस ठीक है, हो गया, हो गया। किसी का कुछ छूटा हुआ है? कोई और किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है हमसे। किसी को कोई कुछ पूछना है तो वो हमसे पूछ सकता है। और ऐसे आपका जो है पोर्शन, टेस्ट पोर्शन है लेसन 3। अब आप लोग इसका ABCDE अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होगी तो वो हमसे पूछ भी लेंगे अगले क्लास में, मतलब कल के क्लास में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, इफ यू विल फील एनी प्रॉब्लम, आप कल के क्लास में पूछ लेंगे हमसे। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. किसी को भी कोई प्रॉब्लम? हाँ यस, हाँ हाँ। नाउ अब आप लोग जो है लेसन 3, बैक ऑन लेसन 3 में चले जाइए। लेसन 3 में जाइए। दिस इज योर टेस्ट पोर्शन। लेसन 3 इज लेसन 3 इज योर टेस्ट पोर्शन, नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, लेसन 3 पेज नंबर है 21, पेज नंबर है 21। ठीक है, अब हमको कोई नेचुरल रिसोर्सेज को डिफाइन करिए, जिनको बोलेंगे बताते हैं, कौन बोले, जो हमको दिखेंगे उन्हीं को हम। आदित्य नारायण,
नेचुरल रिसोर्सेज को डिफाइन करिए, डिफाइन द नेचुरल रिसोर्सेज, आदित्य नारायण। Resources which occur in nature and are not created by humans can be defined as natural resources. गुड। और कोई बोलेंगे? आरुषि राज, आरुषि राज बोलिए, डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ हाँ, डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज। मैम इसका आंसर नहीं पता। देखिए एकदम सिंपल सा आंसर आपके बुक में ही दिया हुआ है, उसमें ज्यादा ऐसे जो अभी बोला आदित्य नारायण वो भी ठीक था। तो जैसे देखिए पेज नेचुरल रिसोर्सेज पेज नंबर है 21 का थर्ड लाइन देखिए, द एसेंबलीज ऑफ प्लांट स्पीसीज इन एन एनवायरनमेंट इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड फॉरेस्ट, ग्रासेस एंड हर्ब्स। समझ में आ गया? सिंपल आंसर यही होगा। उसमें क्या क्या आएगा? तो ये आएगा। ठीक है, आंसर समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर बताइए। आ गया। वेरी गुड। What are the two important factors for growth of plants? What are two important factors for the growth of plants? बताइए। Temperature and rainfall. Temperature and Ma'am, sunlight and water. टेम्परेचर एंड रेनफॉल, उसी में टेम्परेचर में सनलाइट एंड रेनफॉल हो ही गया, वही चीज है। आपने भी वही बोला लेकिन थोड़ा सा आपने लैंग्वेज बदल दिया। आंसर आपका भी सही है, सनलाइट एंड वाटर। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर तो सनलाइट ही ना, टेम्परेचर नेचुरल टेम्परेचर क्या है? सनलाइट है। Yes, ma'am. है ना? इज इट क्लियर? यस। नाउ हाँ हाँ, नाउ किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कर सकता है, क्योंकि अब हो गया। इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग मतलब कल के क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, लेसन 3। ठीक है? Yes, ma'am. किन्हीं का कुछ प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। No, ma'am. किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए। हम लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी नहीं होगा तो उसको देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन अब इस वीक के बाद, नेक्स्ट वीक में। ठीक है? यस और नो? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. किन्हीं का कोई हाँ, किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है? एनीवन हैज? किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है? नो? No, ma'am. वाइल्ड लाइफ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वाइल्ड लाइफ? बताइए, आंसर बताइए, वन बाय वन बोलिए। सारे लोग एक साथ बोलने लगते हैं तो दिक्कत। और कोशिश करिए हमसे वही बच्चा बोले जो मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। जो लोग अपना कैमरा ऑफ करके रखे वो नहीं बोले, क्योंकि कैमरा ऑफ करके रखने का मतलब आप पढ़ना नहीं चाहते, तो उतना पढ़ा करके क्या होगा आपको? अगर कोई बताएगा तो हम What do you understand by wildlife? Wildlife includes those animals which are not domesticated. Non-domesticated. What is the meaning of the word non-domesticated? मैम Who जो is giving पालतू the ना answer? हो। मैम जिनको हम आंसर पाल नहीं कौन दे सकते रहे हैं? मैम, आंसर जिनको कौन पाल दे नहीं रहे हैं? सकते। प्रियांशु रजक। यस, जिनको हम पाल नहीं सकते। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किन्हीं को और को आंसर देना है? एनीवन? ऐसे प्रियांशु आपका आंसर राइट था, आंसर रॉन्ग नहीं था।
कल आप लोग अब आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे भी, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करेंगे, लेसन 3 को कल हम लोग रिवीजन में और क्वेश्चन आंसर भी इसका आप लोग को हम बता देंगे, ठीक है। हैव अ गुड डे। Thank you, ma'am. Okay, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am.